Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru Let's Compete. Today, I will discuss CCS Leave Rules 1972, Rule 26 to 28. In this part, I will discuss on leave for vacation and non-vacation department. It is Incredible MCQs Part 7. In this part, you will get complete information about EL. I discussed 12 multiple choice questions. So definitely the session would be interesting one. Till end, listen the video. You get complete information about EL. So my friends, please subscribe my channel Asit Government Rule Guru Let's Compete. Please subscribe my channel, like my channel, and share my channel so that you can get notification for my upcoming videos. If you see my video, do not forget to click on the subscribe button. You see, join my WhatsApp number. It is 8327782034. If any queries there, you contact with me and clear your doubt. Again, join my WhatsApp number 8327782034. If any queries there, you contact with me and clear your doubt. You see, Rule 26. It is EL for non-vacational department other than vacational department. Okay, rule position also very important one. You see, rule position, it is Rule 26. It is 1 subsection A subsection I. How much earned leave is credited for non यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नॉन वैकेशनल डिपार्टमेंट. You see, total 30 days EL per year it will be credited in the employee account, leave account. 15 days on 1st January, 15 days on 1st July. You know, credit of EL actually in advance actually. EL will be credited in the account of concerned employee. So 15 days on 1st January means first half of the year. It is January to June. Then July 1 also again 15 days will be credited. It is for July to December. Clear? So like this total 30 days of EL credited per year. Okay, clear? Next one, you see rule position is very important. Rule 26 1A double IA related to the unavailed joining time. अच्छा, ज्वाइनिंग टाइम दो प्रकार का ट्रांसफर होता है. आप देखेंगे ट्रांसफर किस ट्रांसफर में, एक है पब्लिक ट्रांसफर है, एक रिक्वेस्ट ट्रांसफर है. मगर इसमें आपको रिक्वेस्ट ट्रांसफर में जेटी नहीं मिलेगा, ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा. ओनली पब्लिक ट्रांसफर में आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा. ठीक है, तो आप जब आप जाकर न्यू ज्वाइनिंग जो न्यू प्लेस में आप ज्वाइन करोगे उसके ऊपर थोड़ा मैं बता देता हूं. ज्वाइनिंग टाइम डिस्टेंस आप देख लीजिए. डिस्टेंस मीन्स आप ओल्ड हेडक्वार्टर, इसमें ओल्ड HQ और न्यू हेडक्वार्टर, इसके बीच में हम डिस्टेंस देखेंगे. ठीक है, यदि लेस देन 1000 किलोमीटर तो आपको जो ज्वाइनिंग टाइम 10 डेज का मिलेगा. यदि ग्रेटर देन 1000 किलोमीटर बट लेस देन 2000 किलोमीटर देन आपको ज्वाइनिंग जेटी 12 डेज मिलेगा. और ग्रेटर देन, ठीक है, 2000 किलोमीटर आपको ज्वाइनिंग टाइम 15 डेज मिलेगा. ठीक है, तो ये तो ज्वाइनिंग टाइम का मेरा वीडियो पड़ा है, आप देख लीजिए. और एक बार बता देता हूं, लेस देन 1000 किलोमीटर 10 डेज, greater than 1000 kilometer, less than 2000 kilometer joining time 12 days, and greater than 2000 kilometer 15 days. ठीक है, it is the distance between old headquarter and new headquarter. यदि आप फ्लाइट में जा रहे हो तो फ्लाइट में आप न्यू हेडक्वार्टर को जाओगे तो आपको जो ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा वो 12 डेज, याद रखो. ठीक है, अच्छा, इसमें क्या है, इसमें क्लैरिफाई किया. सपोज मुझे ज्वाइनिंग टाइम 10 डेज मिला और ट्रांजिट में जो जर्नी फ्रॉम ओल्ड हेडक्वार्टर टू न्यू हेडक्वार्टर, ट्रांजिट में सपोज में 2 डेज अवेल किया, ट्रांजिट में 2 डेज अवेल किया, बाकी ऑन अवेल कितना रहा, 8 रहा,
क्योंकि ट्रांजिट जो जर्नी पीरियड में मैं 2 डेज ज्वाइनिंग टाइम अवेल किया, बाकी जो 8 डेज वो क्रेडिट हो जाएगा ईएल अकाउंट में। अभी क्लियर? सो ऑन यहां इस एग्जांपल में ऑन अवेल जेटी कितना है, ऑन अवेल जेटी 8 है, तो ये आपका ईएल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। मगर क्रेडिट होने के बाद आप याद रखिए आपका मैक्सिमम ईएल कितना रहेगा, 300, उससे ज्यादा नहीं होगा। अभी क्लियर अंडरस्टूड? तो यही क्लियर इंफॉर्मेशन दिया है। इफ यू ज्वाइन ए न्यू पोस्ट विदाउट यूजिंग द फुल ज्वाइनिंग टाइम बिकॉज यू आर रिक्वायर्ड टू ज्वाइन अर्ली, द अनयूज्ड ज्वाइनिंग टाइम अप टू 15 डेज में बताया अभी डिस्टेंस के आकर में कैन बी क्रेडिटेड एज ईएल सब्जेक्ट टू द 300 डे मैक्सिमम। सपोज बिफोर जेट आपका ईएल है, ईएल 200 है, ठीक है, ये ऑलरेडी अभी है 200, तो आपको ज्वाइनिंग टाइम सपोज 15 डेज मिला, आप अवेल किया, आप ज्वाइनिंग टाइम अवेल किया सपोज 2 डेज किया, तो ऑन अवेल कितना किया, ऑन अवेल आप 13 किया, तो सपोज आपका ईएल बैलेंस है 290, सॉरी 290, ईएल बैलेंस है 290, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग टाइम 15 डेज मिला, आप अवेल किया 2 डेज, तो कितना ज्वाइनिंग टाइम ऑन अवेल किया, 13, तो ये 13 तो ऐड होगा, मगर ऐड होने के बाद ओनली मैक्सिमम कितना रहेगा ईएल 300, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो इसमें इस इमेजिनरी एग्जांपल में आपका जो 3 डेज ज्वाइनिंग टाइम लैप्स हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम आपका ईएल कितना रहेगा अकाउंट में, 300, इससे ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि मेरा एग्जांपल में आपका ऑलरेडी ईएल 290 था और उसके बाद ज्वाइनिंग टाइम 15 डेज मिला, आप ट्रांजिट में 2 डेज अवेल किया ज्वाइनिंग टाइम, बाकी जो ऑन अवेल ज्वाइनिंग टाइम 13 वो आपका ईएल में क्रेडिट होगा, तो 290 प्लस 13 तो 303 हो रहा है ना, तो मैक्सिमम ईएल कितना रहेगा, 300। तो ऐसे कैलकुलेशन होता है, ठीक है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे, यहां पर वही चीज बता दिया, मैनेजिंग द 300 डे सीलिंग, ये रूल 26(1) ए डबल आई बी। अच्छा, हम कैसे मैनेज करेंगे 300 डे सीलिंग, एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आपका जून 30 में जो ईएल बैलेंस है वो 295 है, 295 ईएल ऑलरेडी है, तो जुलाई 1 में फिर 15 ईएल क्रेडिट होगा, मगर ये 15 ईएल को हम सेपरेट रखेंगे। 15 ईएल को कैसे रखेंगे ना, 295 प्लस 15, इसको हम सेपरेट बफर के आकार में रखेंगे। याद रखिए मेरा एग्जांपल में जून 30 में आपका ये बैलेंस कितना था ईएल 295, फिर जुलाई 1 सेकेंड जो हाफ ईयर है, ईएल तो एडवांस में क्रेडिट होता है, तो जुलाई 1 में कितना ईएल क्रेडिट होगा, 15, तो जब 15 होगा हम उसको सेपरेट रखेंगे और हम देखेंगे सपोज जुलाई टू दिसंबर सपोज आप इसमें 8 ईएल कंज्यूम किया, कितना ईएल कंज्यूम किया, 8 ईएल कंज्यूम किया जुलाई टू दिसंबर, तो बाकी कितना रहा 7, 295 प्लस 7 तो 302 हो रहा है, मगर मैक्सिमम ईएल कितना रहेगा, 300 रहेगा। तो इसे सेपरेट करके इसको इसमें आप देख लीजिए, इसमें आपको एटलीस्ट 10 कंज्यूम कर देना है, क्योंकि 10 कंज्यूम करने के बाद ही 300, क्योंकि 300 तो क्रॉस नहीं होगा। तो मेरा जो इमेजिनरी एग्जांपल में, तो ये जो 15 जो जुलाई 1 में 15 ईएल क्रेडिट होगा उसको सेपरेट रख दीजिए। जुलाई टू दिसंबर में आप कितना ईएल कंज्यूम कर रहे हो, सपोज मेरा एग्जांपल में 8 ईएल में कंज्यूम किया, तो 8 ईएल करने के बाद कितना बचा, आउट ऑफ 15 7, तो 295 प्लस 7 302 है ना, तो मैक्सिमम तो 300 होगा। जब दिसंबर जो 31 आ जाएगा तो बैलेंस रहेगा 300, उससे क्रॉस नहीं होगा। तो इसीलिए क्या है, ये जो सेपरेट होगा उससे आप सपोज 5 ऐड करेंगे 300, तो बाकी 10 ईएल आपको कंज्यूम कर लेना है। आप 10 ईएल कंज्यूम नहीं करोगे तो वो लैप्स हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम 300 ईएल ही रहेगा। तो ऐसे हम अकाउंट जो, जैसे और एक एग्जांपल देता हूं, आपका ऑलरेडी 290 ईएल है और ये सपोज जून 30 में आपको जुलाई 1 में आपको 15 ईएल क्रेडिट हुआ, तो उसको आप सेपरेट रख दीजिए, 290 प्लस 15,
फिर जुलाई टू डिसंबर आप कितना ईएल ओके यूज कर रहे हो, ठीक है। इसमें एटलीस्ट 5 आपको ईएल कंज्यूम कर देना है, क्योंकि 5 करने के बाद आपका दिसंबर 31 में 300 होगा। यदि आप कुछ कंज्यूम नहीं करोगे तो ओनली तो मैक्सिमम 300 ईएल ही रहेगा दिसंबर 31 में, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ये जो बताया वही मैं दे दिया। यहां पर एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जैसे मेन ईएल अकाउंट आपका 290 डेज है जो जून 30 में, न्यू एडवांस जुलाई 1 में 15 डेज, ये जुलाई 1 में आपका 15 डेज क्रेडिट होगा, तो मैक्सिमम अलाउड कितना है 300 है। तो आप ये जो जुलाई 1 में 15 ईएल क्रेडिट होगा उसको अलग हम रखेंगे सेपरेट, ठीक है। और जुलाई टू दिसंबर में आप 8 ईएल कंज्यूम किया, यूज किया, तो बाकी कितना रहा 7, तो 290 प्लस 7 कोई प्रॉब्लम नहीं है, 297 डेज है जो लेस देन 300 डेज है। तो हम देखेंगे दिसंबर, इस एग्जांपल में दिसंबर 31 में आपका बैलेंस 300 ईएल रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है, क्लियर। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट पार्ट चलेंगे। यहां पर दिया है कि रिकैलकुलेशन ऑफ अर्न लीव। इसमें क्या है, रूल पोजीशन देखिए, रूल 26(1)(a)(ii)। इसमें क्या है, रेगुलराइजेशन ऑफ नॉन परमानेंट स्टाफ विदाउट ब्रेक इन सर्विस। सपोज एक एग्जांपल देता हूं, जनवरी 1 2023 में एक कंसर्न पर्सन को टेम्पोररी पोस्ट मिला, यहां पर टेम्पोररी पोस्ट में वो ज्वाइन किया, ठीक है। आप जानते हो जब टेम्पोररी पोस्ट में आप कंटिन्यूअसली काम करोगे विदाउट ब्रेक इन सर्विस, तो वो उसका जो क्वासी परमानेंट हो जाएगा, यदि परमानेंट है क्वासी परमानेंट हो जाएगा 3 इयर्स के बाद। ये रूल है क्वासी परमानेंसी का। जैसे पूरा आप टेम्पोररी पोस्ट में काम कर रहे हो, कंटिन्यूअस 3 इयर्स आप काम करोगे विदाउट एनी सर्विस ब्रेक, तो 3 इयर्स के बाद क्वासी परमानेंट हो जाएगा। परमानेंट होने से ठीक है, पर क्वासी परमानेंसी हम मान लेंगे। तो आपका जनवरी 1 2026 में सपोज आप क्वासी परमानेंसी और आप परमानेंट हो गए, ठीक है, तो मान लिया जाएगा परमानेंट जैसा, क्वासी परमानेंसी वही है, मान लिया जाएगा कि जैसा परमानेंट एम्प्लॉय को जो बेनिफिट मिलता है आपको वही बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो आपका पोस्ट को परमानेंट कर दिया गया। तो इसमें क्या है, जब जनवरी 1 2026 में आपका पोस्ट क्वासी परमानेंट हो गया कि परमानेंट हो गया, तो इस केस में क्या होगा, तो जिस डेट में आप ज्वाइन किए थे टेम्पोररी पोस्ट जनवरी 1 2023, वहां से आपका अभी क्या होगा ना, ईएल रिकास्ट होगा, रिकैलकुलेशन होगा, क्योंकि पहले तो आप टेम्पोररी पोस्ट में थे। तो जनवरी 1 2026 मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में आपका क्वासी परमानेंसी हुआ। क्वासी परमानेंसी में बताया कि आप कोई टेम्पोररी जॉब में कंटिन्यूअसली 3 इयर्स काम करते हो, तो 3 इयर्स के बाद ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि आप परमानेंट एम्प्लॉय को जो फैसिलिटी मिल रहा है आपको वही मिल रहा है। यदि आपका पोस्ट को परमानेंट कर दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये है जनवरी 1 2026 में आपका पोस्ट क्वासी परमानेंट हो गया और परमानेंट हो गया। तो इसमें क्या होगा, अभी आपका ईएल को रिकैलकुलेट किया जाएगा। कब, कहां से किया जाएगा ना, जनवरी 1 2023 से, ठीक है। याद रखिए रेट्रोस्पेक्टिवली आपका ईएल को रिकैलकुलेट किया जाएगा। अभी क्लियर अंडरस्टूड। तो बहुत ही जनवरी 1 2000, तो मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में आपका जो ईएल अभी रिकैलकुलेट होगा मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में, तो वो हो जाएगा 1 जनवरी 2023, तो रेट्रोस्पेक्टिवली होगा, ठीक है। अच्छा ये देखिए यहां पर क्लियरली दिया है, देयर लीव अकाउंट्स आर रिकैलकुलेटेड रेट्रोस्पेक्टिवली आज इफ दे वर परमानेंट फ्रॉम द स्टार्ट। अच्छा, तो जब रिकैलकुलेट हुआ, तो रिकैलकुलेट में आपका सपोज ईएल रिकैलकुलेट में हो रहा है 90, मगर टेम्पोररी टाइम में, टेम्पोररी पीरियड टाइम में आप 20 ईएल ऑलरेडी स्पेंट, 20 ईएल ऑलरेडी स्पेंट, तो अभी बैलेंस कितना होगा, अभी बैलेंस हो जाएगा कितना होगा 70। तो इसे मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपका टेम्पोररी पोस्ट को रेगुलराइजेशन ऑफ नॉन परमानेंट स्टाफ विदाउट ब्रेक इन सर्विस, जब आपका टेम्पोररी पोस्ट को क्वासी परमानेंसी और परमानेंट पोस्ट में डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो आप जिस डेट में ज्वाइन किए थे टेम्पोररी पोस्ट में, वहां से आपका ईएल को रिकैलकुलेट किया जाएगा, और टेम्पोररी पीरियड में जितना ईएल लिए थे
अभी रिकैलकुलेट जो रिकास्ट होने के बाद हम देखेंगे टेम्पररी पीरियड में आप कितना ईएल लिए थे, तो उसको हम डेबिट करके बैलेंस को शो करेंगे। ठीक है, जैसा एक एग्जांपल यहां पर दे दिया, देखिए सपोज एन एम्प्लॉई had 50 days of EL entitlement after recalculation। तो रिकैलकुलेशन हुआ, रिकैलकुलेशन हम देखेंगे रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑन टेम्पररी पोस्ट। अच्छा, आप टेम्पररी पीरियड टाइम में 20 डेज EL लिए थे, अभी रिकैलकुलेशन होने के बाद पूरा जिस डेट में आप ज्वाइन किए थे टेम्पररी पोस्ट में, वहां से हम कैलकुलेट करेंगे EL, जैसे परमानेंट एम्प्लॉय को मिलता है। तो टोटल सपोज आपको एंटाइटलमेंट 50 डेज मिला, आप टेम्पररी पीरियड टाइम में 20 डेज EL ऑलरेडी स्पेंड किए थे, तो बाकी EL आपका क्रेडिट होगा 30 डेज। अभी क्लियर अंडरस्टूड? तो रेट्रोस्पेक्टिवली ये चीज बहुत, इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन आ रहा है। तो कोई भी टेम्पररी पोस्ट को जब क्वासी परमानेंसी और परमानेंट पोस्ट के आकार में डिक्लेयर कर दिया जाता है, जो जिस डेट में एक्चुअली कंसर्न एम्प्लॉय टेम्पररी पोस्ट में ज्वाइन किया था, वहां से EL रिकैलकुलेट होगा, और जितना EL वो स्पेंड किया था टेम्पररी पीरियड टाइम में, उसको डेबिट करके फिर जितना बैलेंस बचेगा उसको क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट वन, अनदर वन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। इसके ऊपर भी मैं थोड़ा क्लैरिफाई करता हूं। रूल 26(1)(a) (ii)(c)(ii)। इसमें क्या है, आपका सपोज अभी रिकैलकुलेट हुआ, आपका पोस्ट अभी क्वासी परमानेंसी हो गया कि परमानेंट हो गया, तो आपका रिकैलकुलेट किया गया EL को, तो EL आपको 90 डेज EL मिला। ठीक है, तो ये जो EL कैलकुलेट हुआ, जैसे परमानेंट पोस्ट में आप ज्वाइन करते हो, फ्रॉम ज्वाइनिंग डेट से कैलकुलेट होता है, वैसा ही जब आपका पोस्ट को क्वासी परमानेंसी और परमानेंट पोस्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जिस डेट में आप टेम्पररी पोस्ट में ज्वाइन किए थे, वहां से आज यूजुअल जो परमानेंट एम्प्लॉय को जैसे EL मिलता है, वैसे ही EL कैलकुलेट होगा। तो मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में कैलकुलेट हुआ 90, तो उस समय आप EL टेम्पररी पीरियड में आप EL स्पेंड किए थे ऑलरेडी, स्पेंड में कर दिया टेम्पररी पीरियड में, टेम्पररी पीरियड टाइम में आप 20 EL स्पेंड किए थे, तो बाकी बैलेंस कितना बचेगा अभी 70। रिकैलकुलेट के बाद आपका 90 डेज EL हो रहा है, और टेम्पररी पीरियड टाइम में आप 20 EL कंज्यूम ऑलरेडी कर दिए थे, तो बैलेंस कितना होगा 70। अच्छा, इसको देखिए, अभी बैलेंस EL कितना है, अभी बैलेंस EL सपोज मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में 70 है। अच्छा, आप टेम्पररी पीरियड टाइम में EOL लिए थे 30 EOL, क्योंकि उस समय तो आपको टेम्पररी पोस्ट के हिसाब से आप एक्चुअली आपको EL मिलता है, तो वो परमानेंट के हिसाब से नहीं मिलता है। तो टेम्पररी टाइम में आप EOL 30 लिए थे, मगर अभी आपका जो बैलेंस कितना बच रहा है 70 बच रहा है आफ्टर रिकैलकुलेशन। तो उसमें जो EOL आप टेम्पररी पीरियड में लिए थे, TP मींस टेम्पररी पीरियड में लिए थे, उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा EL को, क्योंकि EL तो है ना, बैलेंस है 70, तो टेम्पररी पीरियड टाइम में आप 30 EOL लिए थे, तो वो 30 EL को एडजस्ट कर दिया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा EL में, और उससे डेबिट करके बैलेंस कर दिया जाएगा EL कितना ना 40, इससे कैलकुलेट होता है। तो आप जो भी EL लिए थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो लिए थे आप टेम्पररी पीरियड टाइम में, वो कन्वर्ट हो जाएगा EL को। कब होगा ना, जब आपका EL रिकैलकुलेट होगा व्हेन योर टेम्पररी पोस्ट ओके कन्वर्ट टू क्वासी परमानेंसी और परमानेंट पोस्ट। ठीक है, तो जो टेम्पररी पीरियड में आप EOL लिए थे उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा EL को, मगर इसमें देखना होगा कि आप रिकैलकुलेट के बाद कितना बचा है EL, क्योंकि रिकैलकुलेट होगा, रिकैलकुलेट से सपोज एक एग्जांपल देता हूं, यहां पर RC कर दिया, रिकैलकुलेट हुआ, रिकैलकुलेट में आपको आपका 90 EL हुआ, और टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम में आप 20 EL ऑलरेडी स्पेंड किए थे। अच्छा, बाकी टेम्पररी पीरियड टाइम में आपका जो EOL था, टेम्पररी पीरियड टाइम में आप EOL लिए थे 30। ओके, तो इसमें आपका जो 20 EL आप टेम्पररी पीरियड टाइम में लिए थे वो माइनस होगा, और जो EOL है वो कन्वर्ट हो जाएगा EL को। तो अभी 30 20 50 है, 50 होने से बैलेंस कितना बच जाएगा, बैलेंस 40 होगा। तो जो EOL एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव जो टेम्पररी पीरियड में लिए थे उसको कन्वर्ट किया जाएगा EL को, मगर हम देखेंगे बैलेंस के हिसाब से कितना बैलेंस है।
ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट होता है आपका। रिकैलकुलेट में 90 ईएल मिला, टेम्पररी पीरियड में आप कितना ईएल लिए थे, उसको कितना स्पेंड किए थे उसको माइनस कर दिया जाएगा, बैलेंस निकाल दिया जाएगा, और फिर देखेंगे हम कितना ईओएल लिए थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लिए थे टेम्पररी पीरियड में, तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा ईएल को, और आपका उतना जो जब ईएल को कन्वर्ट कर दिया जाएगा उतना बैलेंस है कि नहीं हम चेक करेंगे। इसमें तो है, क्योंकि 20 ईएल आप स्पेंड किए थे तो 70 ईएल है, 70 ईएल है तो आपका ईओएल 30 लिए थे, तो बैलेंस 40 बच रहा है, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे आप कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, फॉरेन सर्विस का बात आ रहा है। फॉरेन सर्विस में जैसे आप ऑटोनोमस बॉडी को जा रहे हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को जा रहे हो, लोकल बॉडी को जा रहे हो, तो इस केस में आपका जो फॉरेन सर्विस ड्यूटी, जब आपका लीव सैलरी कंट्री, इसको याद रखिए, यदि आप लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन पेड करेंगे तो जो फॉरेन सर्विस टाइम का जो पीरियड है उसको ईएल के लिए काउंट किया जाएगा, और एज यूजुअल ईएल आपका अकाउंट में क्रेडिट होगा, याद रखिए। मगर उसमें एक कंपल्सरी कंडीशन है, आपका लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन आपको देना है। यदि आप लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन दोगे तो आपका जो फॉरेन सर्विस पीरियड का ड्यूटी है उसमें आपको एज यूजुअल ईएल मिलेगा, ठीक है, वो काउंट होगा फॉरेन सर्विस पीरियड, और यू आर इंटाइटल फॉर ऑन लीव, ठीक है। और बाकी आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में रूल 26, ये रूल पोजीशन सब बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 26 सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि एक स्ट्रेच में, सिंगल स्ट्रेच में आप कितना ईएल ले सकते हो। इन सिंगल स्ट्रेच हाउ मेनी ईएल कैन बी सैंक्शनड, ओके, फॉर द कंसर्न एम्प्लॉई, इट इज अप टू 180 डेज, इससे ज्यादा नहीं। सिंगल स्ट्रेच में आप 180 डेज ईएल ले सकते हो। और एक रूल बता रहा है, रूल 26 सबसेक्शन 3 बता रहा है, अच्छा, फॉर एक्स इंडिया ट्रिप्स class 1 and class 2 officers can be granted up to 300 days at a time if the leave or part of it is spent outside South Asia। outside South Asia, साउथ एशिया जो सार्क कंट्रीज है, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, इसको छोड़ के ये नहीं होगा। आउटसाइड, इसके अलावा यदि आप आई मीन्स अदर एरिया को आप जा रहे हो तो उसमें आपका एक स्ट्रेच में जो ईएल है 180 टू 300 डेज हो जाएगा। मगर इंडिया में यदि आप पार्ट ऑफ द लीव इंडिया में स्पेंड करना चाहते हो और पार्ट आप आउटसाइड इंडिया में स्पेंड करना चाहते हो, मगर इंडिया में मैक्सिमम जो आप ईएल स्पेंड करोगे वो 180 है, उससे ज्यादा नहीं होगा। मगर इसमें याद रखना है आउटसाइड साउथ एशिया, साउथ एशिया नहीं। यदि आप कोई साउथ एशियन कंट्री को, जैसे जो श्रीलंका, बर्मा, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इसको विजिट कर रहे हो तो वही सेम ये नहीं होगा, 180 ईएल एक स्ट्रेच में 300 ईएल नहीं होगा, ओके। साउथ जो एशियन कंट्रीज है, सार्क कंट्रीज को उसको छोड़ दो, उसके अलावा आप जा रहे हो अदर कंट्री को, तो उसमें आपका जो एक स्ट्रेच में ईएल 180 डेज था वो 300 डेज को कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपका ट्रिप है, आप सपोज 300 ईएल ले लिया, आप विजिट कर लिए यूरोप कंट्री को चले गए, और इंडिया में आप कुछ पार्ट इंडिया में स्पेंड किया, कुछ पार्ट यूरोप में। इंडिया में स्पेंड किया 170 डेज और यूरोप में स्पेंड किया 130 डेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर इंडिया में जो मैक्सिमम आप स्पेंड करोगे 100, यदि पार्ट ऑफ द जो ईएल है वो इंडिया में स्पेंड करना चाहते हो और पार्ट यूरोप में, मगर इसमें इंटरेस्टिंग है, यूरोप कंट्री को आप विजिट करना चाहते हो, वो तो साउथ एशिया में नहीं है, सार्क कंट्रीज में नहीं आता है। आप सार्क कंट्री जाओगे तो ये एक स्ट्रेच में 300 ईएल नहीं मिलेगा। सार्क कंट्री को छोड़ के और जहां पर भी आप जाओ, आपका जो एक स्ट्रेच में आपको 300 ईएल मिलेगा। और इंडिया कुछ पार्ट ईएल आप इंडिया में स्पेंड करना चाहते हो और कुछ पार्ट यूरोप में, मगर इंडिया में मैक्सिमम कितना स्पेंड करोगे 180, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। इसमें कोई प्रॉब्लम मेरा, क्योंकि इंडिया में 170 डेज आप स्पेंड किया और यूरोप में 130 डेज, ये तो 180 से लेस है ना। मगर आप बोलेंगे कि मैं इंडिया में 190 डेज स्पेंड करूंगा और यहां पर 110, ये नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम कितना डेज स्पेंड करोगे 180, ठीक है, क्लियर। ये रूल पोजीशन रूल 26(2) बोल रहा है इंडिया में एक स्ट्रेच में आपको कितना ईएल आपको सैंक्शन होगा, और रूल 26(3) एक्सेप्ट साउथ एशिया, एक्सेप्ट साउथ एशियन कंट्रीज, आप जहां पर भी जाओ आपका एक स्ट्रेच में ईएल 300 डेज मिलेगा। मगर
कुछ पार्ट इंडिया में स्पेंड करना चाहते हो, कुछ पार्ट आउटसाइड इंडिया स्पेंड करना चाहते हो, मगर इंडिया में जो आप स्पेंड करोगे वो 180 डेज से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, चलो यहां पर भाई सिचुएशन को मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दिया। नॉर्मल केस इंडिया में एक स्ट्रेच में आपको ईएल 180 डेज, और ईएल वेयर द एंटायर लीव और पार्ट ऑफ इट स्पेंट आउटसाइड द स्पेसिफाइड कंट्रीज, तो वो 300 को 180 डेज जो ईएल एक स्ट्रेच में था वो 300 डेज हो जाएगा। ओके, और जो सपोज आप ये सोच रहे हो कि पार्ट ऑफ द लीव स्पेंड इन इंडिया एंड पार्ट ऑफ द लीव स्पेंड इन आउटसाइड, तो इंडिया में मैक्सिमम 180 डेज आप स्पेंड कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ये चीज वही बताया। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, हम कैलकुलेशन चेक करेंगे। रूल 27, कैलकुलेशन ऑफ ईएल, कैसे ईएल को हम कैलकुलेट करेंगे उसको देखेंगे। देखिए, जो स्टैंडर्ड अर्निंग रेट है, जो आपका 27 सबसेक्शन 1 बोल रहा है कि कॉन्सर्न एम्प्लॉय को एवरी कैलेंडर मंथ में 2.5 डेज, ये जो मैं बता रहा हूं ये नॉन वैकेशनल, ये है नॉन वैकेशनल डिपार्टमेंट के लिए। नॉन वैकेशनल डिपार्टमेंट के लिए मंथली रेट जो है कैलेंडर मंथ, कैलेंडर मंथ मीन सपोज जनवरी, सपोज आप जनवरी को जाएंगे 1 to 31, ओके, ये कैलेंडर मंथ, पूरा फुल कैलेंडर मंथ आप ड्यूटी करोगे तो आपको जो एवरी मंथ में जो आपको ईएल क्रेडिट होगा 2.5 डेज, 5/2 डेज। क्लियर, सेम थिंग here it is clearly given, government employees earn 2.5 days of on leave for every fully completed calendar month, fully completed calendar month। सपोज आप जनवरी 2 में आप ज्वाइन किया, क्या जनवरी 2 फुल कैलेंडर मंथ होगा? फुल नहीं होगा, क्योंकि आप ज्वाइन किया जनवरी 2 में, तो इसमें जनवरी 2 में आपको ईएल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंप्लीट कैलेंडर मंथ नहीं हुआ। हैव यू क्लियरली अंडरस्टूड और नॉट? तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी हाफ ईयर क्रेडिट, इसको मैं बता चुका हूं, हाफ ईयरली, फर्स्ट हाफ ईयर में 15 ईएल क्रेडिट होगा और नेक्स्ट हाफ ईयर में 15 ईएल एडवांस में, जनवरी 1 जुलाई 1 में 15 ईएल क्रेडिट होता है। सो टोटल 30 डेज ईएल मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बताया रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन। रिटायरमेंट रेजिग्नेशन में क्या है, क्रेडिटेड आर 2.5 डेज पर कंप्लीटेड, देखिए पर कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ अप टू द एग्जैक्ट डेट ऑफ रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन, मगर यहां पर बता दिया पर कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ। सपोज देखिए एक एग्जांपल, इसमें सपोज मई 15 में आप रेजिग्नेशन दे दिया, मई 15 में आप रिजाइन कर दिया, मई 15 में, तो आपको जो ईएल मिलेगा 4, क्योंकि मई 15 मीन्स मई वो एक कंप्लीट कैलेंडर मंथ नहीं हुआ, तो आपको जो 4 मंथ्स के लिए आपको 2.5 into 4 8 ईएल आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। ओके, मई मंथ नहीं होगा, मई मंथ में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बोला है पर कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ, तो 8 ईएल क्रेडिट होगा। अच्छा, रिटायरमेंट केस में सपोज आपका रिटायरमेंट में मई 31 में आपका रिटायरमेंट है, इसको मैं रिटायरमेंट है, तो मई 31 में रिटायरमेंट है मीन्स अब पूरा कैलेंडर मंथ हुआ, तो 2.5 into 5 के हिसाब से कैलकुलेट होगा। 12.5 है, उसको राउंड अप कर देंगे 13। तो इसमें आपको कंप्लीट कैलेंडर मंथ लेना है। कैलेंडर मंथ मीन्स ऑलवेज कैलकुलेट करो 1 to 30, और जैसे जुलाई है, अगस्त है, जनवरी 1 to 31। ठीक है, अभी क्लियर अंडरस्टूड? तो ये पार्ट हो गया। अच्छा, रिमूवल डिसमिसल में, रिमूवल डिसमिसल क्या है, सपोज क्रेडिटेड आर 2.5 डेज पर कंप्लीटेड मंथ अप टू द एंड ऑफ द मंथ प्रायर टू रिमूवल और डिसमिसल। सपोज एक एग्जांपल देता हूं, इसमें एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आप अप्रैल 30 में आपको रिमूव कर दिया गया, कि रिमूव की डिसमिस कर दिया गया, तो आपका ईएल कैसे कैलकुलेट होगा, कब तक ईएल कैलकुलेट होगा? अप टू मार्च, चाहे अप्रैल 30 लास्ट है, ओके, अप्रैल 30 लास्ट है अप्रैल का, मगर आपको रिमूव डिसमिस कर दिया गया मींस प्रीवियस मंथ मार्च 31 तक आपको ईएल मिलेगा। तो यहां पर ईएल आपको कितना मिलेगा? 3 मंथ्स, जनवरी टू मार्च। ठीक है, 7.5/8 होगा, उसको राउंड अप कर देंगे। याद रखिए अप्रैल मंथ आप बोलेंगे कि अप्रैल लास्ट डे, अप्रैल 30 में मुझे रिमूव किया जा रहा है, डिसमिस किया जा रहा है, तो मुझे अप्रैल का भी ईएल मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा, तो इसलिए तो दे दिया
कि आपको क्रेडिटेड 2.5 डेज पर कंप्लीटेड मंथ अप टू द एंड ऑफ द मंथ प्रायर टू रिमूवल और डिसमिसल। और लास्ट वन डेथ इन सर्विस। अच्छा, डेथ केस में क्या है, क्रेडिटेड 2.5 डेज पर कंप्लीटेड मंथ, यहां पर कैलेंडर नहीं बोला, कंप्लीटेड मंथ बोला, अप टू द एग्जैक्ट डेट ऑफ डेथ। अच्छा, कंप्लीटेड मींस क्या है, जैसे आपको कोई पूछेगा दो डिफरेंस, कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ, कंप्लीटेड मंथ। कंप्लीटेड मंथ क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अप्रैल 15 टू मई 14, ये एक कंप्लीट मंथ है, कंप्लीट 1 मंथ है। ओके, कोई मिड टू देखिए अप्रैल 15 में लिया, स्टार्ट हुआ मई 14 तक, ये कंप्लीट मंथ है। मगर कैलेंडर मंथ क्या है, सपोज आप बोलेंगे कैलेंडर मंथ ऑफ अगस्त, तो अगस्त का जो कैलेंडर मंथ है वो 1 to 31 है। अगस्त मंथ का आप कैलेंडर मंथ निकालेंगे तो 1 to 31। तो इसमें क्या है, डेथ केस में वो कैलेंडर यूज नहीं किया, पर कंप्लीटेड मंथ किया। ओके, तो इसमें याद रखिए कि सपोज आपका डेथ हो रहा है मई 15 में डेथ हो रहा है, मई 15 में डेथ हो रहा है, तो यहां पर जो ईएल मिलेगा वो जनवरी टू अप्रैल, जनवरी टू अप्रैल, क्योंकि मई एक कंप्लीटेड मंथ नहीं है, मई एक कंप्लीटेड मंथ नहीं है, तो आपको 4 मंथ्स के लिए ईएल मिलेगा। तो यहां पर आपका जो ईएल क्रेडिट होगा 2.5 into 4। हैव यू क्लियर अंडरस्टूड? तो इट मींस 10 ईएल मिलेगा। मगर डेथ केस में और एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, सपोज डेथ हो रहा है, आपका डेट में बता रहा हूं, जैसे आपका सपोज ये जो डेट चल रहा है अगस्त, इसमें आपका डेथ होगा, एक डेट टाइम बता रहा हूं 12:30 आफ्टर, जस्ट आफ्टर मिडनाइट 12:30 AM। ओके, ऑन 31 अगस्त इसमें आपका डेथ हो गया, इसमें आपका कंसर्न एम्प्लॉय का डेथ हो गया, माने जस्ट आफ्टर मिडनाइट, मगर वो 31 अगस्त में आ जाता है कि नहीं? तो इसमें आपको अगस्त तक, जो जुलाई अगस्त दोनों का मिलेगा, जुलाई अगस्त दोनों को मिलेगा। सपोज और एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एक अप्रैल का बता रहा हूं, जैसे आपका 1 AM आफ्टर, जस्ट आफ्टर 1 AM अप्रैल 30 को कंसर्न एम्प्लॉय का डेथ हो रहा है, तो अप्रैल 30 आ गया ना, ओके, जस्ट आफ्टर मिडनाइट, है कि नहीं? तो इस केस में आपको पूरा अप्रैल मंथ का ईएल मिलेगा। हैव यू क्लियर अंडरस्टूड और नॉट? अप्रैल मंथ का मिलेगा। सपोज आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा डेथ इन सर्विस केस में, सपोज किसका डेथ हो गया 2 AM अप्रैल 29, ओके, अप्रैल 29 इसमें डेथ हो जाता है, क्या अप्रैल मंथ का अप्रैल मंथ के लिए ईएल मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंप्लीट मंथ नहीं हुआ। हैव यू क्लियर अंडरस्टूड और नॉट? तो यहां पर अप्रैल के लिए आपको ईएल नहीं मिलेगा। क्लियर? तो इसलिए कंप्लीटेड मंथ आपको लेना है, पर कंप्लीटेड मंथ। और कोई मिडिल में, सपोज जैसे अप्रैल 29 में डेथ होता है, तो यहां पर जो ईएल मिलेगा वो जनवरी टू मार्च 2.5 into 3 मंथ्स के लिए मिलेगा, जनवरी टू मार्च। 7.5 है, इसको राउंड कर दीजिए, ठीक है? तो अप्रैल के लिए नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको कंफ्यूजन, पर कंप्लीटेड मंथ मींस आप जस्ट आफ्टर मिडनाइट, जैसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बताया कि आपका 12:15 AM है और इट इज अप्रैल 30, जस्ट आफ्टर मिडनाइट 12:15 AM अप्रैल 30, ठीक है? अच्छा, ये हो गया। क्या अप्रैल के लिए ईएल मिलेगा कि नहीं? इसमें अप्रैल के लिए आपको ईएल मिलेगा, ठीक है? हैव यू क्लियर अंडरस्टूड और नॉट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो यहां पर नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, 27 सबसेक्शन 3 रूल पोजीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ईओएल और डायजनॉन ले लिया। सपोज एग्जांपल देखिए, इसमें क्या है, जनवरी टू जून के अंदर आपका, आप ईओएल ले लिए 60 और आपका डायज अनऑथराइज एब्सेंस हो गया सपोज 30, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया? दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया? 90 हो गया।
ठीक है, तो उसका 1/10 निकाल दो, 1/10 आप निकाल दो, 1/10 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो जो जुलाई 1 में जो आपका ईएल क्रेडिट होगा उससे 9 रिड्यूस कर दिया जाएगा, 9 ईएल रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में जुलाई 1 में कितना ईएल क्रेडिट होगा ना, जुलाई 1 में ओनली 6 क्रेडिट होगा ईएल। समझ रहे कि नहीं? तो याद रखो, यदि कोई हाफ मंथ में आप ईओएल और डायजनॉन ले रहे हो, ये मैं बता रहा हूं नॉन वैकेशनल डिपार्टमेंट, जो ईओएल डायजनॉन ले रहे हो उसका 1/10 रिड्यूस होगा, जो नेक्स्ट हाफ ईयर में जो ईएल क्रेडिट होगा उसका 1/10 रिड्यूस होगा। जैसे मेरा एग्जांपल में जनवरी टू जून के अंदर आप 90 डेज दोनों मिलाकर ईओएल एंड डायजनॉन ले लिया, तो उसका 1/10 कितना है, 9 होगा। तो जो नेक्स्ट हाफ ईयर में आपका 9 ईएल को रिड्यूस कर दिया जाएगा, एक्चुअली 15 मिलना चाहिए, तो 15 से 9 को रिड्यूस कर दिया जाएगा, तो कितना ईएल आपको मिलेगा, 6 ईएल क्रेडिट होगा। तो 1/10 याद रखिए, 1/10 ऑफ द, ओके, 1/10 ऑफ द टोटल ईओएल एंड डायजनॉन, ओके, वो रिड्यूस होगा जब नेक्स्ट हाफ ईयर में आपका ईएल क्रेडिट होगा। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर दे दिया, द लीव क्रेडिटेड एट द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट हाफ ईयर इज रिड्यूस्ड बाय 1/10 ऑफ द नंबर ऑफ डेज ऑफ ईओएल और डायजनॉन। दोनों को मिला दो, दोनों को मिलाना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, ईओएल प्लस डायजनॉन, ठीक है। और यानी इसमें जो 27 सबसेक्शन 4 बोल रहा है, ये बोल रहा है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ क्या है, जैसे 12.5 है वो 13 हो जाएगा, 0.5 एंड मोर वो नेक्स्ट होल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो वो रूल 27 सबसेक्शन 4 बोल रहा है। चलो नेक्स्ट वन, अभी हम देखेंगे ये जो है अभी हम देखेंगे वैकेशन डिपार्टमेंट, रूल 28 ऑन लीव फॉर वैकेशन डिपार्टमेंट। अच्छा, वैकेशन डिपार्टमेंट में टोटल ईएल मिलता है 10 डेज, 1 जनवरी में 5 डेज, 1 जुलाई में 5 डेज, टोटल ईएल मिलेगा 10 डेज, ठीक है, वैकेशन डिपार्टमेंट के लिए। अच्छा नेक्स्ट वन, सपोज आप वैकेशन पीरियड में काम करोगे तो कैसे कैलकुलेट होगा। जैसे आपका यहां पर एक फॉर्मूला है, आप वैकेशन पीरियड में काम करोगे तो आपको एडिशनल ईएल मिलेगा। तो जो एडिशनल ईएल मिलेगा वो बोल रहा है कि कैलकुलेटेड प्रोपोर्शनेटली फ्रॉम 20 डेज। अच्छा, ये क्यों बोला प्रोपोर्शनेटली फ्रॉम 20 डेज, मींस क्या है, नॉर्मली आपको ईएल कितना मिल रहा है ईयर में, 10, और यदि आप वैकेशन पीरियड में, यहां पर मैं लिख दिया वैकेशन पीरियड में आप काम कर रहे हो तो आपको एडिशनल ईएल मिलेगा, एडीडी, आपको एडिशनल ईएल मिलेगा, मगर एडिशनल ईएल कितना मैक्सिमम होगा, 20, ये मैक्सिमम। क्योंकि आप जानते हो, आप नॉन वैकेशन डिपार्टमेंट में देखा मैक्सिमम ईएल कितना मिलता है ईयर में, 30 ईएल, देखा कि नहीं, जो नॉन वैकेशन डिपार्टमेंट में कितना, 30 ईएल, 15। तो वही होगा यदि वैकेशन आपको तो नॉर्मली जो वैकेशन डिपार्टमेंट में है ईएल तो उनको ईयर में 10 मिलता है। यदि आप वैकेशन पीरियड, ये जो वीपी में लिखा वैकेशन पीरियड में काम कर रहे हो तो आपको एडिशनल ईएल मिलेगा, क्योंकि वैकेशन पीरियड में आप काम कर रहे हो, तो एडिशनल ईएल मैक्सिमम 20 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो दोनों को मिलाने से कितना हो जाएगा, दोनों को मिलाने से 30 होगा। अभी क्लियर अंडरस्टूड और नॉट? तो जो प्रोपोर्शनेट जो आपको एडिशनल ईएल मिलेगा मैक्सिमम 20 मिलेगा। मैक्सिमम 20 कब मिलेगा, यदि पूरा वैकेशन पीरियड आप काम कर रहे हो, पूरा वैकेशन पीरियड आप वैकेशन में नहीं गए, पूरा वैकेशन पीरियड को आप काम किए, तो अब आपको कितना ईएल आ जाएगा, एडिशनल ईएल 20। तो इसलिए इसको याद रखिए, प्रोपोर्शनेटली फ्रॉम 20 डेज। और फॉर्मूला है एडिशनल ईएल कैसे कैलकुलेट होता है ना, 20 इंटू डेज ऑफ वैकेशन नॉट टेकन। डेज ऑफ वैकेशन नॉट टेकन मींस आप वैकेशन नहीं लिया, हाउ मेनी डेज वैकेशन यू हैव नॉट टेकन डिवाइड बाय टोटल डेज ऑफ वैकेशन, ऐसे करके कैलकुलेट होता है। आप देखिए, सपोज यहां पर एक एग्जांपल देता हूं, आपका वैकेशन पीरियड है 60 डेज, ठीक है। आप इसी वैकेशन पीरियड में वैकेशन नॉट टेकन, वैकेशन नॉट टेकन, आप वैकेशन नहीं लिया, 40 डेज का वैकेशन आप नहीं लिया, वैकेशन नॉट टेकन, वैकेशन नॉट टेकन मींस आप काम किया, तो इसमें आपको एडिशनल ईएल मिलेगा। तो आपको कितना एडिशनल ईएल मिलेगा, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 20 इंटू
अच्छा, वैकेशन जो 60 डेज था, 60 डेज से आप कितना दिन वैकेशन नहीं लिया? मेरा एग्जांपल में 40 डेज वैकेशन नहीं लिया, वैकेशन नॉट टेकन, वैकेशन नॉट टेकन, और अल्टरनेटली हम बोलेंगे कि इट मींस यू हैव वर्कड इन द वैकेशन, यू हैव वर्कड इन द वैकेशन। तो आप देखेंगे फॉर्मूला क्या है, 20 इंटू हाउ मेनी डेज वैकेशन नॉट टेकन बाय टोटल वैकेशन। इसके हिसाब से देखेंगे 23 यहां, तो ये हो जाएगा 13.3। तो आपको एडिशनल ईएल कितना मिलेगा? 13 मिलेगा एडिशनल ईएल। ठीक है, क्लियर? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला को याद रखिए। यदि आप जो वैकेशन डिपार्टमेंट में बेसिकली टीचिंग प्रोफेशन में जो है उनको वो वैकेशन डिपार्टमेंट में आता है, तो आप देख लीजिए एक फॉर्मूला एडिशनल, यदि आप वैकेशन पीरियड में आप काम कर रहे हो तो आपको कैसे एडिशनल ईएल मिलेगा? इट इज 20 इंटू डेज ऑफ वैकेशन नॉट टेकन, डेज ऑफ वैकेशन नॉट टेकन, इट मींस जो वैकेशन पीरियड में आप काम किया डिवाइड बाय टोटल डेज ऑफ वैकेशन। ऐसे करके आप एडिशनल ईएल निकाल दीजिए। मगर इसमें और एक बार समझा देता हूं कि प्रोपोर्शनेटली फ्रॉम 20 डेज मींस नॉर्मली आपको ईएल 10 डेज मिलता है, और बाकी आपको जो एडिशनल ईएल 20 मिलेगा मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ईयर में टोटल ईएल इससे ज्यादा नहीं होगा, 30 ईएल से ज्यादा नहीं होगा, याद रखिए। तो इसीलिए प्रोपोर्शनेटली हम बोल रहे हैं 20 डेज। ठीक है, फॉर्मूला क्लियर? तो इस तरीका का एक एग्जाम्पल भी मैं दे दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। अच्छा, यदि आप पूरा वैकेशन नहीं लेंगे, इफ नो वैकेशन टेकन, सपोज वैकेशन है, वैकेशन पीरियड 60 है, वैकेशन नॉट टेकन, आप पूरा वर्क किया वैकेशन में, 60 डेज काम किया, तो आपको एडिशनल ईएल कितना मिलेगा? एडिशनल ईएल आपको 20 मिलेगा, एडिशनल ईएल आपको 20 मिल जाएगा। अच्छा, आप बोलेंगे सर 20 क्यों मिलेगा? क्यों? क्योंकि आपको नॉर्मली कितना मिलता है? नॉर्मली 10 मिलता है, नॉर्मली 10 ईएल मिलता है, और बाकी मैक्सिमम कितना मिलेगा? 20, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ईयर में मैं बार बार बताया जो डेडलाइन है वो 30 है, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो पूरा वैकेशन पीरियड आप काम कर रहे हो तो एडिशनल ईएल आपको 20 मिलेगा, तो 10 + 20 30 है। और आप फॉर्मूला भी डालकर देख लीजिए पूरा। अच्छा, आप फॉर्मूला डालेंगे वही होगा, वैकेशन पीरियड कितना है? 60 है, आप पूरा वैकेशन पीरियड काम किया 60 है, तो फॉर्मूला क्या था? 20 इंटू हाउ मेनी डेज ऑफ वैकेशन यू हैव नॉट टेकन, पूरा आप नहीं लिया, पूरा वैकेशन काम किया, और टोटल डेज वैकेशन, तो वही 20 है ना। ठीक है कि नहीं? तो ये रूल 28(1)(c) बोल रहा है, इफ नो वैकेशन टेकन, वो रूल 26 को फॉलो कर रहा है। रूल 26 बोल रहा है कितना? 30 ईएल मैक्सिमम। तो यहां पर कैसे आपको नॉर्मली जो वैकेशन डिपार्टमेंट नॉर्मली 10 ईएल, और एडिशनल ईएल मैक्सिमम कितना रहेगा? 20 रहेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये रूल 26 को फॉलो कर रहा है। रूल 26 बोल रहा है मैक्सिमम एक ईयर में 30 ईएल मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, कॉम्बिनेशन में बता रहा है 28(2), आप वैकेशन प्लस ईएल ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको मैं बता देता हूं, वैकेशन के साथ ईएल कंबाइन हो सकता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, मगर ये होगा दोनों मिलाकर 180 डेज मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि आप एक स्ट्रेच में कितना ईएल ले सकते हो? 180 डेज। तो यदि वैकेशन के साथ ईएल कंबाइन होता है, यदि वैकेशन के साथ ईएल कंबाइन होता है, तो दोनों मिलाकर कंबाइन 180 डेज से ज्यादा नहीं होगा। तो ये रूल 22 बोल रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे, 12 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैज 292 डेज ऑफ ईएल इन देयर मेन अकाउंट ऑन 30th जून, 30th जून में 292 है, और अच्छा 30th जून में 292 है, मींस आपका जुलाई 1 में कितना मिलेगा? 15 ईएल क्रेडिट होगा, तो उसको सेपरेट रख दीजिए, 292 प्लस 15 को आप सेपरेट रखिए, ये रूल बोल रहा है। अच्छा, तो फिर आप 8 डेज ईएल ले लिया जुलाई टू दिसंबर, तो यहां पर जुलाई टू दिसंबर आप कितना ईएल लिया? 8 डेज ले लिया, ये जुलाई टू दिसंबर। अच्छा, तो 15 से माइनस कर दो, 15 से 8 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया? 7 हो गया, तो 299 ये हो जाएगा। तो ये जो 299 बालांस अभी समय 300, इससे ज्यादा नहीं होगा, तो इसमें आंसर क्या है? बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मैक्सिमम
limit of earned leave that can normally be granted at a single time to a government servant in India, वो मैं बताया था, आप देख लीजिए रूल 26(2) देखिए, रूल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रूल 26(2) देखिए, एक स्ट्रेच में आप मैक्सिमम 180 डेज ईएल ले सकते हो, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, if a government servant takes 30 days of extraordinary leave and 30 days dies none in a half year, how many days will be reduced, how many days will be reduced from their EL credit at the start of the next half year in non vacation। अच्छा, नॉन वैकेशन में टोटल एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव और डाइज नॉन कितना हो गया 60, तो इसका 1/10 आप 60 का निकाल दीजिए, कितना 6, तो नेक्स्ट हाफ ईयर में जो ईएल क्रेडिट होगा उसमें 6 ईएल को रिड्यूस कर दिया जाएगा, तो इट मींस नेक्स्ट हाफ ईयर में 9 ईएल क्रेडिट होगा। ये नॉन वैकेशन के लिए पूछा है, 1/10 ऑफ द टोटल ईओएल एंड डाइज नॉन, तो यहां पर टोटल ईओएल डाइज नॉन कितना है 60 है, तो उसका 1/10 आप निकाल दीजिए, तो जो नेक्स्ट हाफ ईयर में जो ईएल क्रेडिट होगा उसमें 6 ईएल को रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी डेज विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम देयर ईएल क्रेडिट at the start of the next half year in non-vacation department, it is option C is the correct answer, 6 days, ठीक है। Question number 4, an employee in a vacation department has a full vacation period of 60 days but is required to work and only avails 20 days vacation वो लेना चाहता है, ओनली वैकेशन 20 डेज लेना चाहता है, व्हाट इज द एडिशनल ईएल। अच्छा, एडिशनल ईएल का फॉर्मूला निकाल दो, 20 into how many days, how many period of vacation he has not taken, only avails 20 days of vacation बोल रहा है, 20 days वो वैकेशन लिया, तो how many days vacation he has not taken 40, how many days vacation he has not taken 40 by total vacation period, इसे करके आप निकालिए। अभी क्लियर स्टूडेंट, 20 into वैकेशन नॉट टेकन, ये जो है वैकेशन नॉट टेकन डिवाइड बाय टोटल वैकेशन पीरियड, तो उसमें ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो 13.3 आ रहा है, तो 13.3 मींस राउंड ऑफ कर दो, ये 13 डेज आपको एडिशनल ईएल 13 डेज मिलेगा, ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इन केस ऑफ रिमूवल और डिसमिसल ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, हाउ इज ऑन लीव क्रेडिटेड फॉर द फाइनल इनकम्प्लीट हाफ ईयर। सपोज आपको रिमूव कर दिया गया May 31 में, रिमूव कर दिया गया कि डिसमिस कर दिया गया, तो आपको जो ईएल मिलेगा वो वो जनवरी टू अप्रैल मिलेगा, जनवरी टू अप्रैल मिलेगा, याद रखो, चाहे May 31 मई का लास्ट डे है, आपको रिमूव कर दिया गया, मगर मई मंथ के लिए आपको नहीं मिलेगा, ओनली मिलेगा जनवरी टू अप्रैल, 4 मंथ्स के लिए मिलेगा, याद रखो। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, क्रेडिटेड आर 2.5 डेज पर कंप्लीटेड मंथ अप टू द एंड ऑफ द मंथ प्रायर टू रिमूवल और डिसमिसल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, जो क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर्स में बताया था, आप रूल पोजीशन देखिए, 20 रूल पोजीशन देखिए, इसमें 26 सबसेक्शन 3 सीसीएस लीव रूल्स 1972 रूल 26(3) में यदि क्लास 1 एंड क्लास 2 ऑफिसर्स वो आउटसाइड इंडिया जाना चाहते हैं, आउटसाइड इंडिया जब जाएंगे तो एक स्ट्रेच में उनको 300 डेज, मगर एक्सेप्ट साउथ एशिया, सार्क कंट्रीज को छोड़ दीजिए, तो प्रोवाइडेड द लीव और पार्ट ऑफ इट इज स्पेंट आउटसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, साउथ एशिया को ये दिया है, प्रोवाइडेड द लीव और पार्ट इज स्पेंट आउटसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, ये दे दिया। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्लास 1 एंड क्लास 2 ऑफिसर्स में बी ग्रांटेड ऑन लीव फॉर एक्स इंडिया ट्रिप्स अप टू 300 डेज एट ए टाइम, प्रोवाइडेड द लीव और पार्ट ऑफ इट इज स्पेंट आउटसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, आउटसाइड मीन साउथ एशिया, साउथ एशिया नहीं, साउथ एशिया के अलावा सार्क कंट्रीज को छोड़ दो, सार्क कंट्रीज के अलावा यदि आप विजिट करना चाहते हो अदर कंट्रीज, तो आपको एक स्ट्रेच में 300 ईएल मिलेगा, मगर इंडिया में कुछ पार्ट इंडिया में आप स्पेंड करना चाहते हो, कुछ पार्ट आउटसाइड इंडिया, तो इंडिया में 180 मैक्सिमम, ठीक है, क्लियर। मगर याद रखिए जो सार्क कंट्रीज है, आप सार्क कंट्री विजिट करते हो तो आपको ईएल एक स्ट्रेच में 300 नहीं मिलेगा, ओनली एक्सेप्ट साउथ एशिया, एक्सेप्ट सार्क कंट्रीज, बाकी एनी अदर कंट्री को आप विजिट करते हो तो आप एक स्ट्रेच में आपको 300 ईएल मिलेगा, और कुछ पार्ट आप इंडिया में स्पेंड करना चाहते हो और कुछ पार्ट आउटसाइड इंडिया, तो इंडिया में स्पेंड करना चाहते हो तो मैक्सिमम 180 डेज,
तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, what when a temporary or non-permanent employee is regularized without a break in service, how is their earned leave account adjusted? मैं बताया था जो टेम्पररी एम्प्लॉय है यदि उसको क्वासी परमानेंट और परमानेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उसका ईएल को रिकैलकुलेट किया जाएगा। तो उसका ईएल को रिकैलकुलेट किया जाएगा। अच्छा, कब से किया जाएगा ना? फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ टेम्पररी पोस्ट। टेम्पररी पोस्ट जिस डेट में ज्वाइन किया था वहां से आपका जैसे परमानेंट एम्प्लॉय को जो जैसे ईएल मिलता है वैसे ही ईएल कैलकुलेट होगा। ठीक है, इसको मैं पूरा डिस्कस कर चुका हूं। तो यहां पर भी ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन बी, द लीव अकाउंट इज रिकैलकुलेटेड रेट्रोस्पेक्टिवली आज इफ दे वर ए परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट एंड ईएल ऑलरेडी टेकन इज डिडक्टेड। नो, मैं इसके ऊपर भी एग्जांपल दे चुका था। जैसे अभी रिकैलकुलेटेड हुआ, रिकैलकुलेटेड में ईएल उसको 90 मिला और टेम्पररी पीरियड में वो 30 ईएल लिया था, टेम्पररी पीरियड में ऑलरेडी लिया था, तो बैलेंस अभी बचेगा कितना 60। और सपोज टेम्पररी पीरियड में वो ईओएल लिया था 40, टेम्पररी पीरियड में ईओएल लिया था 40, तो ये ईएल को भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा ईएल को। ठीक है, इसमें फिर बैलेंस 40 को माइनस करने से आपका बैलेंस बचेगा 20 ईएल, इतना क्रेडिट होगा। तो जो आप जो टेम्पररी पीरियड टाइम में जो ईएल आप स्पेंड किए थे वो डेबिट होगा, और यदि आप ईओएल लिए थे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव वो भी कन्वर्ट होगा ईएल को, मगर हम देखेंगे ईएल कितना ड्यू है। ओके, तो उसको भी ईएल को कन्वर्ट करके उसको भी डेबिट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द कंडीशन फॉर टाइम स्पेंट ऑन फॉरेन सर्विस टू अकाउंट एज एक्टिव ड्यूटी फॉर अर्निंग ऑन लीव। मैं बताया था यदि जो फॉरेन सर्विस में आप जा रहे हो तो आप यदि आपका लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन दे रहे हो तो जो फॉरेन सर्विस का जो ड्यूटी पीरियड होगा एज यूजुअल आपका उसमें ईएल मिलेगा, मगर आपको लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन देना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मैक्सिमम reduction that can occur in the EL credit of a half year due to unpaid absence EOL or diazonon in the preceding half year in vacation department? अच्छा, वैकेशन डिपार्टमेंट में आप याद रखिए 1/30 वैकेशन में जो EOL ले रहे हो और जो आप डायजनॉन ले रहे हो उसका 1/30 एक्चुअली रिड्यूस होगा। जितना 1/30 रिड्यूस होगा, 1/30 जो नेक्स्ट हाफ ईयर में जो आपका ईएल क्रेडिट होगा वहां से 1/30 रिड्यूस होगा जितना ईओएल और डायजनॉन लिया है। और आपको नेक्स्ट हाफ ईयर में कितना मैक्सिमम वो पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम रिडक्शन? मैक्सिमम रिडक्शन 5 है, क्योंकि नेक्स्ट हाफ ईयर में वैकेशन डिपार्टमेंट में तो 5 ईएल क्रेडिट होता है, तो वही मैक्सिमम 5 डेज एक्चुअली। यदि आप सपोज ईओएल प्लस आप डायजनॉन आप ले लिया पूरा 6 मंथ्स ले लिया, 6 मंथ्स ले लिया, तो 6 मंथ्स लेने से पूरा तो वही पूरा 5 उसका 1/30 कितना आता है 1/30 1/30 6 मंथ्स हो गया कितना 180, तो ये 6 हो रहा है, मगर आपको ईएल कितना मिल रहा है क्रेडिट हो रहा है नेक्स्ट ईयर में 5, तो पूरा मैक्सिमम 5 डेज ईएल रिड्यूस होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, यहां पे हम 3 स्टेटमेंट्स गिवन, करेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे। Consider the following statements. If a government servant joins a new post yearly without availing full joining time under orders, the unavailed joining time is credited to their EL account. ये ठीक है, जो ज्वाइनिंग टाइम आपको मिलेगा, जो ज्वाइनिंग टाइम पीरियड को आप अवेल नहीं करोगे तो वो आपका ईएल अकाउंट में क्रेडिट होगा, मगर वो 300 मैक्सिमम 300 ईएल से क्रॉस नहीं होगा। Unavailed joining time can be credited to the EL account even if the total accumulated EL exceeds 300 days. ये गलत है, क्योंकि देखिए आपका सपोज ईएल है 295 है, आपको जेटी ऑन अवेल कितना किया मैंने ऑन अवेल, आप जेटी हो गया 10 हो गया, तो आपका बैलेंस कितना रहेगा? बैलेंस वही 300 रहेगा, 305 नहीं होगा, वही 300 मैक्सिमम होगा। आप समझ रहे हो कि नहीं? 300 मैक्सिमम होगा, 305 नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट गलत है।
The facility of crediting unavailed joining time to the EL account is also available to the employees serving in vacation. Vacation डिपार्टमेंट में वही है, वैकेशन नॉन वैकेशन वही है, दोनों में ज्वाइनिंग टाइम जो अवेल नहीं करोगे वो EL में क्रेडिट होगा. तो 1 and 3 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11. If a government servant takes 30 days of EOL and 40 days dies none in half year, how many EL will credit at the start of the next half year? वैकेशन डिपार्टमेंट. अच्छा, वैकेशन डिपार्टमेंट में आप 1/30 निकाल दीजिए. कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है? 30. डाइज नॉन है 40. इसका 1/30 निकाल दीजिए. 1/30 इंटू 70 तो ये हो गया 2.3. तो 2.3 मीन्स इसको राउंड ऑफ कर देने से कितना हो गया? 2 हो गया. तो इतना रिड्यूस होगा. इतना नेक्स्ट जो हाफ ईयर में इतना आपका EL 2 रिड्यूस हो जाएगा. 2 रिड्यूस होने से हाउ मेनी EL विल क्रेडिट नेक्स्ट हाफ ईयर में? 3. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि जितना EOL और डाइज नॉन आप ले रहे हो वैकेशन डिपार्टमेंट में उसका 1/30 आप निकाल दीजिए. 1/30 कितना हुआ? 2 हुआ. तो उतना रिड्यूस होगा. जो नेक्स्ट हाफ ईयर में जो EL क्रेडिट होगा उससे उतना EL रिड्यूस होगा. तो यदि 1/30 ऑफ टोटल EOL एंड डाइज नॉन इट इज 2, तो obviously 2 EL can be reduced from the 5 EL. जो 5 EL क्रेडिट होने वाला है नेक्स्ट हाफ ईयर में उससे 2 EL को आप रिड्यूस कर दो तो 3 आपका क्रेडिट होगा. हाउ मेनी EL विल क्रेडिट पूछा है तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. आज का लास्ट क्वेश्चन है क्लास 12. ए क्लास 1 ऑफिसर इज सैंक्शन टू 50 days of on leave under rule 26(3) of CCS leave rules 1972 to visit Europe. How many maximum days out of these 250 days can the officer spend within India before or after their foreign trip? मैं बताया था इंडिया में जो आप एक स्ट्रेच में 300 EL मिलेगा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है. अप टू 300 EL मिलेगा क्योंकि आप यूरोप को विजिट करना चाहते हो. मगर इंडिया में कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हो और यूरोप में, मगर इंडिया में मैक्सिमम 180 डेज आप स्पेंड करोगे, उससे ज्यादा नहीं. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. तो आज ये पूरा EL के ऊपर था. ठीक है. सो माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल सो दैट यू कैन गेट क्वालिटी वीडियोस इन सब्सिक्वेंट टाइम. आज इतना ही है. थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू.